Hello everyone, my name is Neha and in this video we are going to discuss a summary of chapter 7 of class 11 book snapshots, and the name of the chapter is Birth. Now this chapter is being written by very famous author A.J. Cronin. But was he an author by profession? Question mark. I want you all to tell me. Before that, let me give you a hint. Master of wonderful narrative skills, he drew subject matter for most of his novels and stories from his medical career. Medical career? कुछ आपके दिमाग में आया? Medical career से? Doctor, right? Yeah, absolutely right. He was a doctor by profession, but writing stories and writing novels was a part of his passion, right? So he used to enjoy writing, and he won lots of competitions in writing as well. He was a very famous writer. So one of his famous stories that we are going to discuss today is Birth. Now, before discussing, let us discuss the characters of the chapter Birth. First is Dr. Andrew. Now, this Dr. Andrew is not a very famous or a professional doctor. He has just become a doctor. Like, he's a novice or a newly made doctor and is in his internship period these days, right? Now, the second is a Morgan family. In Morgan family, we have two main characters, that is a husband named Joe Morgan and wife named Susan Morgan. But in the incident that we are going to discuss right now, we will see two more characters. One is Susan Morgan's mother and a midwife. Midwife is a lady who helps you, you know, in giving birth to a child's process. So that is midwife. In Hindi we call midwife Dai. I hope you are able to understand now. Now the background of the chapter is this Dr. Andrew, this Morgan, Joe Morgan and Susan Morgan, they're expecting their first child after 20 years of their married relationship. And they are quite apprehensive for the well-being of the child, for the well-being of the wife as well. So, you know, they are a bit apprehensive, worried and happy. So it's you know, a mixed feeling that they are going through, and they want the child to be healthy and safe. That's why, to, you know, ensure the safety and the security of the child and the mother as well, of course, Joe Morgan has approached Dr. Andrew. I hope you have understood the background. Yes, of course, there is a midwife in the house as well. Midwife means, as we have just discussed, दाई. दाई कौन होती हैं? जो child birth में help करती हैं. I hope you have understood. So, although there is a midwife at their place right now to help Susan Morgan in the childbirth process, but then also to ensure the safety of the wife and the child, Joe Morgan ने Dr. Andrew को भी approach किया, right? Now, I hope you have understood the background. After 20 years of their happy married life, they are expecting their first child. So they are quite worried and apprehensive and anxious for the safety of the child. They want it anyhow. Plus they are also, you know, a bit worried about the safety of the wife. Moving forward. Now, the scene belongs to after 9 months of carrying baby in his womb. Now it is the time when Susan Morgan is expecting the delivery of their first child. Alright. Now, when there is a time, you know, when the time has come for the delivery, obviously everybody is apprehensive. Mother has also come to Morgan's place to help Susan Morgan in the process. And they have also called a midwife, and Joe Morgan has also called Dr. Andrew Manson. Now the chapter starts with Joe Morgan waiting outside Dr. Andrew's place, and he's like, you know, really very nervous. And जैसे आप nervous होते हो तो आपने देखा होगा ना, ऐसे ऐसे चलते हैं लोग, right? तो ये ऐसे चल के wait कर रहा है Dr. Andrew के घर आने की. Dr. Andrew got a bit late because obviously he was on his job, and as I have already told you that these days he is in his internship period. Internship period क्या होता है? जब आप किसी अच्छे डॉक्टर को असिस्ट कर रहे होते हो. असिस्ट करना क्या होता है? जब आप बेसिकली काम प्रैक्टिकल वे में सीख रहे होते हो.
आई होप यू अंडरस्टूड। आपकी पूरी मेडिकल डिग्री खत्म होने के बाद आपके पास जो 6 मंथ्स या जो भी जितने भी ड्यूरेशन होता है, आई एम नॉट श्योर, टाइम होता है जब आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेते हो, सिंपल वर्ड्स में। सो वो डॉक्टर एंड्रयू मैनसन अभी उस टाइम पीरियड में है अपने। सो आफ्टर हिज असिस्टेंस टू सम ऑफ द फेमस डॉक्टर्स, he came back home, but before that he also went to meet his girlfriend. Now डॉक्टर एंड्रयू के जब वो अपनी beloved से मिलने गए, there they had a heated discussion, like they had some kind of a short fight on some matters, and after that heated conversation, when he reached back home, he was not in his happy and good spirits. Obviously लड़ाई करके आओगे आप तो खुश तो नहीं होगे। He was quite depressed and in a very you can say very sad notion mood में थे। सडनली उनको जो मॉर्गन दिखते हैं, जो बहुत डरे और सहमे और नर्वस हुए हुए उनका वेट कर रहे हैं। सो द मोमेंट डॉक्टर एंड्रयू रीच्ड आउटसाइड हिज प्लेस, जो मॉर्गन उन्हें बोलते हैं, प्लीज डॉक्टर एंड्रयू, आई नीड योर हेल्प, आप लेट हो गए, इट्स बीन एन आवर, आई एम वेटिंग फॉर यू आउट हियर, प्लीज मेरे घर चलिए, माई वाइफ नीड्स योर असिस्टेंस बिकॉज द टाइम हैज कम फॉर द बेबी बर्थ, सो आप प्लीज घर चलिए। डॉक्टर एंड्रयू मैनसन कह सकता था that I need time to freshen up myself, that I need time to to relax a bit, to rejuvenate myself, to eat something, but being dedicated to his services, Dr. Andrew Manson ने 1 मिनट भी सोचने के लिए भी नहीं लगाया, and he said yes, all right, I'm going to accompany you, but wait for a while, let me get my suitcase, जो भी briefcase है, briefcase क्यों? बिकॉज जितनी भी सर्जिकल इक्विपमेंट्स थी, रिक्वायर्ड सर्जिकल इक्विपमेंट्स, वो सब ले लेते हैं एंड देन वील मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स योर प्लेस, जो मॉर्गन्स प्लेस। वो फटाफट अंदर गए, अपना बैग उठाया एंड ही गॉट ऑल द रिक्वायर्ड सर्जिकल इक्विपमेंट्स एंड दे स्टार्टेड देयर जर्नी टुवर्ड्स मॉर्गन्स प्लेस। एंड द मोमेंट दे रीच्ड जो मॉर्गन्स प्लेस, जो मॉर्गन डिनाइड टू गो इनसाइड। नाउ दिस क्वेश्चन यूजुअली कम्स इन द एग्जाम, जो मॉर्गन अपने घर में ही अंदर क्यों नहीं गया? वाई डिड ही डिसाइड टू स्टे आउट? बिकॉज कह सकते हो कि वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था अपनी वाइफ से, या ही वॉज क्वाइट he was quite anxious for the birth of this baby. That's why he decided to remain outside, because according to him he would not be able to see his wife in pains. That's why he decided to remain outside, because उसको लगा probably अगर मैं अंदर हुआ तो I can create a bit of fuss by getting anxious, और थोड़ा सा डर जाऊंगा, मुझे देखकर और डरेंगे लोग, हिम्मत नहीं मिलेगी रादर मेरी वाइफ को। So it's better to remain outside and pray to God for the safety or the well-being of the child and the mother. Now Joe Morgan decided to remain outside, चाहे 2 घंटे लगे, 3 लगे, अब जो भी टाइम है मैं बाहर ही रहूँगा, I'm not going to come inside because I love my wife a lot and I would not be able to see her in pains. Dr. Andrew Manson went inside and examined the mother or the Suzanne Morgan, the would-be mother, right? Suzanne Morgan. Now after examining, he got to know that there is a bit time in the delivery process, और child को अभी आने में थोड़ा वक्त है। एंड उन्होंने वहाँ देखा कौन कौन था, मदर थी और एक मिडवाइफ थी, डॉक्टर ने ऑब्जर्व किया। नाउ जब डॉक्टर ने ये ऑब्जर्व किया कि अभी कुछ टाइम है डिलीवरी प्रोसेस में, तो डॉक्टर के एक्सप्रेशन से मदर भी समझ गई कि डॉक्टर को समझ आ गया, एंड प्रोबेबली ही मे से दैट आई एम लीविंग एंड आई विल कम बैक आफ्टर 2 or 3 hours, क्योंकि अभी तो टाइम है, अभी एग्जैक्टली वो लेबर पेन्स का टाइम नहीं हुआ है, सो थोड़ा टाइम लगेगा बेबी बर्थ प्रोसेस में। तो जनरली डॉक्टर्स, कोई प्रोफेशनल डॉक्टर होता है तो वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा अभी 3 घंटे 4 घंटे का टाइम है, सो मैं यहाँ वेट थोड़ी ना करूँगा, बिकॉज डॉक्टर्स ऑब्वियसली दे हैव देयर ओन रेपुटेशन। सो अकॉर्डिंग टू यू, मुझे नहीं लगता मैंने आज तक कोई ऐसा डॉक्टर देखा होगा जो पेशेंट के लिए कहेगा कि चलो तुम्हें प्रॉब्लम कोई शुरू होगी तो उसके लिए मैं वेट कर रहा हूँ, ऑब्वियसली नॉट। तो मदर को भी लगा कि डॉक्टर एंड्रयू अब ये बोलेंगे कि अभी तो टाइम है आफ्टर डायग्नोजिंग, तो मैं जा रहा हूँ एंड यू कैन कॉल मी आफ्टर लाइक 3 or 4 hours whenever you need my assistance. तो मदर ने टू एंगेज डॉक्टर एंड्रयू, बिकॉज मदर नहीं चाहती थी कि डॉक्टर एंड्रयू जाए। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू,
that they all were really anxious and really happy as well. खुश भी थे कि after 20 years उनके घर में एक बच्चा आने वाला है, but they were a bit anxious as well. थोड़ा डरे भी हुए थे for the well-being of that baby and for the well-being of the mother as well. So mother नहीं चाहती थी कि ये जाए, इसीलिए मदर ने डॉक्टर एंड्रयू को थोड़ा सा ऑक्यूपाइड एंड एंटेंगल करने के लिए बातों में ये बोला कि डॉक्टर वुड यू लाइक टू हैव अ टी और कॉफी, सो दैट मदर कैन एंगेज डॉक्टर एंड्रयू इन सम अदर वर्क्स, थोड़ा सा टाइम जो भी निकले. बट डॉक्टर एंड्रयू भी समझदार थे. डॉक्टर एंड्रयू ने हंस के बोला मदर को, डोंट वरी, मुझे पता है आप ये सब क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको डर है दैट आई मे लीव द प्लेस and I may say to you all that I'll come back after like 3 or 4 hours whenever your wife needs my assistance, but I would not do so because according to me कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, so I would prefer to remain here till you need my assistance. जब तक मैं आपको अपनी पूरी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर दूंगा, I'll be here only, don't worry. so मेरे लिए चाय कॉफ़ी के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. ऑब्वियसली मदर को अच्छा लगा, खुश हुई मदर. इधर सुसैन मॉर्गन भी सुन के खुश हुई कि एक अच्छा डॉक्टर, थोड़ी सी कहते हैं ना मेंटली आप रिलैक्स हो जाते हो अगर आपको कोई आराम से असिस्ट कर देता है तो, और आपको पता होता है दैट यस देयर इज समबडी हु इज देयर फॉर यू, राइट. सो एक वो मेंटल रिलैक्सेशन आ गया ऑलरेडी बिकॉज ऑफ कूल टेम्परमेंट और बिकॉज ऑफ रिलैक्स्ड बिहेवियर or relaxation being given by Dr. Andrew. Now moving forward, after examining the case, थोड़ा सा जब वो चाय पी रहे थे तो उन्होंने इनका डर महसूस किया. कैसे? जब मदर आई आराम से और डॉक्टर से एक बात की डिस्कशन करने लगी दैट सुसैन मॉर्गन नहीं चाहती कि उन्हें क्लोरोफॉर्म दिया जाए. आई होप यू नो व्हाट इज क्लोरोफॉर्म, क्यों दिया जाता है. हाँ राइट, थोड़ा सा हम अगर ऑपरेशन या कुछ ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो क्लोरोफॉर्म हम देकर उस एरिया को आप कह सकते हो नम कर देते हैं. सो क्लोरोफॉर्म एट टाइम्स हार्मफुल होता है छोटे बच्चों के लिए. तो सुसैन मॉर्गन ऑब्वियसली वैसे हर ऑपरेशन में क्लोरोफॉर्म दिया जाता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि सुसैन मॉर्गन बहुत ज़्यादा कंसर्न थी फॉर द न्यूली बॉर्न बेबी, लाइक वुड बी बॉर्न बेबी. सो उन्होंने पहले ही ये डिज़ायर एक्सप्रेस करी अपनी दैट आई डोंट वांट क्लोरोफॉर्म टू बी गिवन टू मी बिकॉज आई डोंट वांट एनी केस टू हार्म माई चाइल्ड, राइट. सो कुछ भी प्रॉब्लम हो मैं सह सकती हूँ, बट मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम बच्चे को नहीं होनी चाहिए. दैट्स वाई डॉक्टर को पहले ही असिस्ट कर दो कि क्लोरोफॉर्म का यूज़ ना करें. Dr. Andrew kind of gave relaxation to the mother by saying that don't worry, हम लोगों का ये रोज़ का काम है, कुछ भी नहीं होगा, कोई इतनी ओवर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. रिलैक्स, take a chill pill, I'll handle everything, I'll take all these things on me, so don't worry, it's my case now, so I'll handle it. But फिर भी थोड़ा सा एक आप कह सकते हो एंजाइटी अभी भी सुसैन मॉर्गन और मदर में थी regarding the birth of baby being done safely. अब now what happens, थोड़े टाइम बाद फिर से जाते हैं डॉक्टर एंड्रयू टू चेक कि बेबी बर्थ का टाइम हुआ या नहीं हुआ, बट देन ही फाउंड कि अभी फिर भी थोड़ा टाइम है. नाउ एग्जैक्टली कुछ देर बाद और एट 3:30, 3:30, बेबी Susan Morgan got her labor pains. Now डॉक्टर एंड्रयू जाते हैं, चेक करते हैं, बट अभी भी थोड़ा सा टाइम और लगता है. एंड देन ही केप्ट ऑन वेटिंग देयर. जो भी प्रोसेस है दैट प्रोसेस स्टार्ट्स, बट एग्जैक्टली बेबी बर्थ 4:30 पे होता है, मतलब 4:30 बच्चा जन्म लेता है. बहुत खुशी हो रही होगी आपको, ये लोग भी सब बहुत खुश थे, सुसैन मॉर्गन and then they have mother, midwife, they all were happy. But एक प्रॉब्लम हुई. क्या? कि उस समय मदर की हालत ठीक नहीं थी. एंड डॉक्टर एंड्रयू जब मदर की तरफ देखने लगे तो थोड़ा सा घबरा गए कि एक वो ऐसी पोजीशन में थी जहाँ मदर को बचाना ज़रूरी था
वेरी क्लोज टू डेथ, और वहीं बच्चे की तरफ नज़र गई तो ये समझ आया कि बच्चा स्टिल बॉर्न था, मतलब बच्चा पैदा हुआ था डेड। नाउ बहुत ही खतरनाक सिचुएशन थी। जैसे मैं इतनी देर से आपको बताती आ रही हूँ, दे ऑल वर क्वाइट एप्रीहेंसिव, एंशियस फॉर द वेलबींग ऑफ द चाइल्ड एंड फॉर द वेलबींग ऑफ Suzanne Morgan as well, because they were expecting their child after 20 years. So obviously Suzanne Morgan was quite old as well. So उस एज में थोड़ा सा complications हो सकते थे that they were expecting. That's why they were quite anxious. तभी midwife के साथ साथ डॉक्टर को भी बुलाया गया था in case of any emergency, because they were already prepared for such case. And वैसा ही हुआ। सब बहुत डर गए, मदर बहुत डर गई, midwife बहुत डर गई। Now in that situation, the biggest dilemma was in the head of doctor. He was having, on the one hand, he was having mother who was quite close to her death, Suzanne Morgan basically. On the other hand, there was a newborn baby जो already dead था. If you would have been in Dr. Andrews' shoes, whom would you have chosen? Mother or child? मदर। काफ़ी बच्चों का जवाब आया था लास्ट टाइम भी मदर, जब हम लाइव क्लासेस में पढ़ रहे थे। ऑब्वियसली सबको यही चाहेगा पहले माँ। हाँ, बच्चा भी ऑफ कोर्स ज़रूरी है, बट माँ का होना ज़्यादा ज़रूरी था। तो जो हमारे डॉक्टर एंड्रयू थे, ही ऑल्सो प्रेफर्ड मदर ओवर चाइल्ड, एंड उन्होंने चाइल्ड को पकड़ाया नर्स को, एंड ही स्टार्टेड डूइंग ऑल हिज मेडिकल प्रैक्टिसेस ऑन मदर। इंजेक्ट किया सिरिंज को, एक हाइपोडर्मिक बॉटल तोड़ी एंड देन उसमें से मेडिसिन निकाली एंड देन इंजेक्ट किया मॉम को, और जो भी मेडिकल प्रैक्टिसेस थी फॉर लाइक अ फ्यू मिनट्स, एंड फाइनली ही फाउंड मदर इज रिवाइविंग, इज गेटिंग बैक her life. Now after being satisfied from mother's side, now डॉक्टर एंड्रयू ने 1 मिनट का भी रेस्ट नहीं लिया, सीधा ध्यान उसका गया where's the baby now, एंड मिडवाइफ ने इशारा किया बेड के नीचे है। उसने फटाफट बेबी को उठाया, देखा स्टिल बॉर्न है। इधर मदर और मिडवाइफ टोटल होप छोड़ चुके थे कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है, बट होपिंग अगेंस्ट होप, होप के अगेंस्ट भी एक होप लगाई किसने? डॉक्टर एंड्रयू ने, कि शायद मैं फिर भी बचा सकता हूँ बच्चे को। देखिए, एक जैसे बहुत क्लोज टू डेथ थी मॉम, उनको बचाना बहुत ही अच्छा काम किया डॉक्टर एंड्रयू ने, लेकिन एक मरे हुए बच्चे को जन्म देना, दिस सीम्स क्वाइट इम्पॉसिबल। आप लोग भी सोच रहे होगे कि मरे हुए बच्चे को अब क्या ट्रीटमेंट देगा, बट डॉक्टर एंड्रयू का आप जज्बा देखिए, सी हिज स्पिरिट्स, हिज डेडिकेशन, that he was ready to work all his medical practices on dead child as well, कि probably मरे हुए को मैं एक रीबर्थ दे दूँ, और इतनी डेडिकेशन से उन्होंने काम किया कि उन्होंने एक मरे हुए बच्चे को दोबारा जन्म दे दिया। Let's see how. The moment he took stillborn lifeless child in his hands, उन्होंने उसकी तरफ नज़र डाली और देखा कि वो कलरलेस हो रहा था, पेल हो रहा था, एंड वो समझ गए कि क्या बीमारी है। एंड फाइनली सडनली ही रिकॉल्ड, ऐसा एक केस आया था जब डॉक्टर ने उसके साथ क्या ट्रीटमेंट किया था, इन्होंने रिकॉल किया, एंड ही कॉल्ड फॉर 2 बेसिन्स, कि फटाफट 2 बेसिन्स ले आओ, वन फिल्ड विद हॉट वाटर एंड वन फिल्ड विद कोल्ड वाटर। हॉट, नॉट दैट हॉट कि आप जल जाओ, मॉडरेटली हॉट। So one with moderate hot water and the other with cold water. Now the moment 2 basins came, doctor started playing like a juggler with the child. How? Hot water में डाला बच्चे को, cold and then hot and then cold, and he kept on doing this process for like a few minutes. After that जब उन्होंने बच्चे को उठाया, तो जब उन्होंने midwife और मदर की तरफ नजर गई, तो वो बहुत ही आप समझ सकते हो गंदे एक्सप्रेशन से देख रही थी कि आप क्या कर रहे हो एक मरे हुए बच्चे के साथ। इनफैक्ट इंटरप्ट करने की भी कोशिश करी इन लोगों ने बाय सेइंग दैट ही इज डेड, व्हाट आर यू डूइंग डॉक्टर, बट देन डॉक्टर ऑर्डर्ड देम टू रिमेन मम फॉर अ व्हाइल, एंड उसने बोला मुझे मेरा काम करने दो। अब इस प्रोसेस के बाद जब बच्चे को देखा विद द होप कि शायद बच्चे में जान आ जाएगी, बट नो, ही वॉज स्टिल लाइफलेस।
नाउ नेक्स्ट स्टेप ही ट्राइड टू डू, उन्होंने थोड़ा सा आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देने की कोशिश करी, दैट ऑल्सो डिडंट वर्क. देन ही स्टार्टेड थम्पिंग हिज चेस्ट. जोर से, आपने देखा होगा बहुत मूवीज में भी कभी कभी चेस्ट को थम्प किया. जैसे ही उन्होंने चेस्ट थम्पिंग स्टार्ट करी, बच्चे में थोड़ी सी जान आई. देन ही स्टार्टेड डूइंग इट मोर वाइगरसली, एंड जैसे ही थोड़ी देर तक करते रहे, बच्चे में जान आ गई. बच्चा में सांस, ब्रीदिंग स्टार्ट होने लगी. धीरे धीरे वो जो पीली पड़ी हुई बॉडी थी, दैट स्टार्टेड गेटिंग पिंकिश. वाई? ब्लड सर्कुलेशन शुरू हो गया. वेरी गुड. एंड कुछ ही देर में ये प्रोसेस चलता रहा, जब बच्चे की पहली रोने की आवाज आई, एंड द फर्स्ट क्राई ऑफ चाइल्ड ब्रॉट हैप्पीनेस ऑन मदर्स, मिडवाइफ्स एंड डॉक्टर एंड्रयूज फेस एज वेल. सब बहुत खुश हुए, एंड according to everybody it was a miracle of God, or a miracle being done by Dr. Andrew. माँ को तो बचाया, that was something next to impossible, but एक ऐसा काम और कर दिया कि एक मरे हुए बच्चे को जिंदा कर दिया. तो ये तो ऐसे लगो जैसे भगवान का कोई रूप हो गया डॉक्टर एंड्रयू मैनसन for Morgan's family. So they all were really happy, elated, ecstatic, and in a very, very joyous state. And now they were all thanking Dr. Andrew, but Dr. Andrew was extremely tired now. Obviously we have discussed, पूरी रात नहीं सोए, उसका एक दिन पहला पूरा थक के आए थे जॉब से, हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में. He went to his job, after that he went to meet his beloved, and beloved से मिलने के बाद वापस कहाँ आए, रात ही रात में कहाँ आ गए, एंड मॉर्गन के घर. फिर पूरी रात नहीं सो पाए, बिकॉज बच्चे का जन्म कितने बजे हुआ है, 4:30. तो इसका मतलब क्या है, 4:30 बजे से सुबह 5:10, 5:15 तक ये प्रोसेस चला. सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग हो गई, पूरा 1.5 दिन हो गया नहीं सोए, थक गए थे बहुत. सो जैसे ही बच्चा भी बचा, माँ भी बची, डॉक्टर एंड्रयू मैनसन ने बोला that it's time for me to leave as I'm extremely tired. So जो भी मेरी medical equipments हैं, I'll collect later on. नर्स को बोला कि आप इसको सबको संभाल लीजिए. The room was really dirty, full of squalor and dirt and filth, because there were all, newspapers all around and surgical equipments all around, and of course water. The floor was all wet. Why water? Because of that cold water and hot water process that he did. But instead of caring for all these things and caring even to get all his surgical equipments assembled and take them back to home, Dr. Andrew decided to leave for his place because he wanted to rest. He was extremely tired, and उन्होंने सबको टाटा बाय बाय गुड लक बेस्ट विशेस विश करी, एंड बाहर निकले. तो घर के बाहर आपको याद है, जो मॉर्गन तो घर में आए ही नहीं थे, घर के बाहर वेट कर रहे थे. जैसे ही जो मॉर्गन ने डॉक्टर एंड्रयू को देखा, जो मॉर्गन भागते हुए उनके पास गए. व्हाट हैपेंड डॉक्टर? डॉक्टर रिप्लाइड in an apprehensive in an affirmative tone that yes, your wife and your child, they both are perfectly all right. आप अंदर जा सकते हैं, and you can meet them both. डॉक्टर ये बोल के डॉक्टर अपने रास्ते घर के लिए निकले, एंड जो मॉर्गन अपने अंदर आए घर में, and got elated to see his wife and his newly born child. Now, after that, what do you think would have happened to Dr. Andrew's medical career? I want you all to reply by writing in the comment box. What, according to you, have happened to Dr. Andrew after this incident? Famous हो गए होंगे या flop? Star या flop? According to me, डॉक्टर एंड्रयू तो वहाँ के स्टार बन गए होंगे, क्योंकि उन्होंने एक इम्पॉसिबल टास्क को पॉसिबल करके दिखाया. हर जगह उनकी तारीफ हो रही होंगी, हर जगह डॉक्टर एंड्रयू की वाहवाही हो रही होगी. रातों रात डॉक्टर एंड्रयू के करियर में एक चेंज आ गया, और डॉक्टर एंड्रयू की आप कह सकते हो दैट नाइट वॉज अ लाइफ चेंजिंग नाइट फॉर डॉक्टर एंड्रयू.
कि उनकी ज़िंदगी ही बदल गई. What do you think? कि उनकी लाइफ में चेंज आया होगा या नहीं? Do let me know by writing in the comment box. Thank you so much. That's all for the day. I hope you enjoyed the story and don't forget to keep yourself safe in this corona terror.